So today we will start with elements of a user defined function. Now up till now we have just discussed about the need of a function and definition of a function, right? Along with that, right now we will study elements of a user defined function. Which elements on which the function user defined function that depends, that elements we are going to be discussed. Now when we are saying that the main function that we are using in a one particular C program, that main function will possess the some characteristics, or main function will have some we can say that importance in case of a C. So therefore the define functions and use of them like any other variables in a C program, it is therefore not a surprise to note that there exist some similarities between the functions and variables in a C. Now they are just quoting a particular point that function and the variables sometimes behaves similar, or sometimes it will act as a similar, because both the function names and the variable names are considered identifiers and therefore they must adhere the rules of identifiers. फंक्शन नेम जो है ना printf है scanf है, इनको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, ठीक है. these are what the keywords, ठीक है. but the identifier is the one which we can declare as a variable name or the name of the function. like the variable, functions have a types. function के भी types होते हैं, क्योंकि हमने देखा है सबसे पहले कि we just have to use a print line function. so inside the bracket we are passing the parameter as a void, but before the print line function name we put as a void. so void is what exactly? it is nothing but the data type or a return type, ठीक है. so like a variable, it is declared as an integer, float. Functions are also declared as an integer, function name, float, function name. Then like a variables, function names and their types must be declared and defined before they are used in the program. अगर हम integer a use करते हैं प्रोग्राम में कहीं पे भी, या फिर वैल्यू ऑफ a प्रिंट करते हैं प्रोग्राम में, then definitely we have to declare first integer a. along with, we have to manage that from where the value of a will come. either it will be initialized inside the program a equal to 10, or either we have to ask the value of a to the user, like a printf enter the value of a, then scanf double quotes में हम %d लिखेंगे as value of a is a integer value, double quotes complete comma %a. it means that if we initialize the value of a itself, a equal to 10, then there is no need to use any kind of a scanf. We are directly printing the value of a equal to 10. But if we want a value from a user, in that case, we require to fetch the value from a user with a message that a printf will be there and scanf will also there to read the value from the terminal or the screen. So likewise, the variables will also have to declare first, and then their definition will be available in the main, their definition will be accessible through the calling function, correct. so in order to make a use of a user friend function, we need to establish three elements that are related to the function. First element is that function definition, then function call, and then function declaration. so as we gone through the, or as we seen a one program, that is, it is related to function, एक function related program हम देख रहे हैं यहाँ पे. so this one is the one program in which we are printing sample program, along with that the few lines with the help of a with the help of this particular underscore, ठीक है. अंडरस्कोर का हम यूज करके हम एक लाइन, मल्टीपल लाइंस हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है. so in that case, void print line void, this is what a globally declaration of a function, which is nothing but the declaration of function. then print line
and functional bracket semicolon. This is a function call. Then void, print line void, and the body of that particular function. Inside we just have to use different variables, different structures like a for loop, do while loop, or anything, printf statements, scanf statements that we can use. That is nothing but the definition of a function. So these things are separate, and these are nothing but the elements of a user defined function. That is what the first is, a function definition, which is not the part of a main class or main function. Main function का part वो कभी भी नहीं रहती है function definition. It is either above or below the main class. Then function call, which is always inside the main function. Then function declaration. Declaration means just a void, print line in bracket void. तो ये जो declaration है, declaration part, ठीक है, we declared it as a void data type, ठीक है, it returns nothing because we use the void, right? So the function definition is an independent program module that is specially written to implement the requirements of the function. In order to use this function, we need to invoke. इसको आपको क्या करना पड़ता है, एक्सेस करने के लिए इन्वोक करना पड़ता है. We need to invoke it at a required place in the program. Required place is what? The place is inside the main function. वहाँ पे आप उसको इन्वोक करते हैं, कॉल करते हैं. This is known as a function call. The program or a function that calls the function is referred to as a calling program or calling function. जिसके थ्रू हम इसको कॉल करना चाहते हैं, दैट इज व्हाट अ कॉलिंग प्रोग्राम और कॉलिंग फंक्शन. द कॉलिंग प्रोग्राम शुड डिक्लेयर एनी फंक्शन like a declaration of a variable that is to be used later in the program, and this is known as a function declaration or function prototype. Generally, when we are solving a MCQ based question, this kind of things or this kind of question may ask that function declaration is also called as function declaration. Function declaration is also called as invoking the function into the main function or main class. Then function prototype, function definition, function calling, ये ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, बट द करेक्ट आंसर इज फंक्शन प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप इज जस्ट व्हाट एग्जैक्टली व्हेन वी आर हैविंग अ वैक्सीनेशन. वैक्सीन अभी जो बनी है, ठीक है, इसके सबसे पहले एक प्रोटोटाइप बना था. विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोटोटाइप इट इज टेस्टेड ऑन द एनिमल फर्स्ट एंड लेटर ऑन इट विल बी टेस्टेड ऑन द ह्यूमन. सम वॉलंटियर्स जो थे उनके ऊपर टेस्ट किया गया एंड देन दे सी द रिजल्ट्स वेदर इट इज क्योर or not, whether it is properly made or not, and then they start vaccination to the rest of the other citizens. So that is what exactly the prototype means. एक dummy model हम बोल सकते हैं, dummy piece on that particular we are testing. उसके ऊपर हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, and that is what a function prototype which is equivalent to the function definition. Now when we see the function definition, what exactly that function definition is? The function definition is a combination of following elements. Function name, print line, हमारे केस में print line ये एक function name है. Function type void हमने यूज किया है. List of parameters, एक भी पैरामीटर पास नहीं किया हमने, void ही पास किया था. Local variable declaration, local variable declaration जो है that is what integer I. It is a local variable declaration because it is not written anywhere apart from the main class. main class के ऊपर उसको लिखा नहीं है हमने, एक particular opening and closing parenthesis में उसको लिखा हुआ है. that's why it is a local declaration. then function statements and a return statement. ठीक है, एक function statement यानी we are using a for loop, printf and printf statements. ठीक है, then all these 6 elements are grouped into the 2 parts, that namely first part is what, function name, function type and list of parameter is known as a function header, whereas local variable declaration, function statements
and a return statement that is nothing but the function body. These are second three elements. Now general format of a function definition to implement these two parts that we will see here. फंक्शन टाइप यानी इंटीजर है कि void है या फिर float है, that is what a function type. Then function name, any name that we can give. Then parameter list, एक वेरिएबल एज अ पैरामीटर लिस्ट आप दे सकते हो, दो भी दे सकते हो, तीन भी दे सकते हो, चार भी दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर फंक्शनल रोल. आपके फंक्शन का रोल क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गिविंग द पैरामीटर्स. इफ वी आर हैविंग अ हेक्सागोन, हेक्सागोन का अगर आपने कोई फंक्शन बनाया, उसका एरिया निकालना है, तो उसमें पैरामीटर्स उतने रहेंगे जितने हेक्सागोन के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए पैरामीटर्स लगते हैं. ट्रायंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दो ही पैरामीटर रिक्वायर्ड रहेंगे. सर्कल रेडियस रिक्वायर्ड रहेगी. सो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन पैरामीटर लिस्ट विल बी डिफाइंड. देन लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, executable statements 1 2 3. Then return statement, if there is a function type is integer, in that case we just have to use a return statement as a return 0, correct. Then the first line, that is what the function type, function name, parameter list is known as a function header, and the statements within the opening and closing braces or brackets constitute the function body, which is a compound statement. यहाँ पे क्या है, फंक्शन बॉडी जो है और फंक्शन हेडर है, ये दोनों क्लब किए जाते हैं एंड दे आर रिटर्न आउट ऑफ द मेन क्लास. मेन क्लास के बाहर उसको लिखा जाता है, ठीक है. नाउ वी विल सी दैट द फंक्शन हेडर, फंक्शन हेडर में क्या क्या रहता है. फंक्शन हेडर कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज फंक्शन टाइप, void, integer or float. Function name, formal parameter list. Note that semicolon is not used at the end of the function header. यहाँ पे जैसे हमने for loop के अंदर कुछ semicolons यूज किए, स्ट्रक्चर में हमने जब स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, इनिशियलाइज किया था स्ट्रक्चर को, आपने मेन क्लास के अंदर, वहाँ पे हमने क्या किया था, सेमीकोलन दे दिया था स्ट्रक्चर में. बट हियर व्हेन वी यूज द फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, वी डोंट हैव टू गिव द सेमीकोलन इनसाइड द डेफिनेशन. इनसाइड द डेफिनेशन मीन्स void प्रिंट लाइन void, यहाँ पे आपको सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है. ये जो मैंने यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन दिखी है, जिसको हम फंक्शन हेडर बोल रहे हैं, it will never carry any semicolon. Whereas body of function जो है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे function body, so that may consist of various statements and they will be having a semicolon, ठीक है. Then name and type, that function type specifies like a float or double or the integer, and that the function is expected to return to the program calling the function. अब प्रोग्राम जब हम कॉल करेंगे उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि अगर वो फंक्शन इंटीजर है तो उसकी साइज जो रहेगी वो 2 बाइट के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी. वो अगर फंक्शन फ्लोट है तो 4 बाइट के हिसाब से, उसका रिटर्न टाइप भी उसके हिसाब से डिफाइन किया जाएगा, राइट. सो डिपेंडिंग अपॉन इट, it will define the calling the function. If the return type is not explicitly specified, अगर हमने दिया नहीं, उसका return type नहीं पता है हमने, C will assume that it is an integer type. Just like that, अगर हम main लिख देते हैं, सिर्फ main, so it is considered as it is integer main. मगर हम void main अगर लिखते हैं, in that case it returns nothing. We are forcefully telling to the program that it returns nothing. Similarly, if we are not writing void function name, in that case it will be considered as or assumed as integer type. If the function is not returning anything, then we need to specify the return type as a void. उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, उसको void return type कंपल्सरीली देना पड़ता है अगर वो रिटर्न नहीं कर रहा है. Remember, void is one of the fundamental data type in C. It is a good programming practice to code explicitly the return type even when it is an integer. The value returned is the output produced by the function.
अब यहाँ पे उनका ये बोलना है कि अगर हम वाइड अगर लिखते हैं, अगर रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस रहती है जो प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो सिमिलरली दैट इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिस दैट इफ it is a integer means it returns something, that function returns something value and which is an integer, then we have to mention it. If it is not returning anything, then again we have to mention it as a void. Don't keep it blank. Correct. Then the function name is any valid C identifier and therefore must follow the same rules of the information as other variable names in C. तो उसके लिए भी वही rules applicable है. The name should be appropriate to the task performed by the function. It just not like that कि अगर आप एरिया निकाल रहे हैं और उसका फंक्शन नेम है सरकमफरेंस, पेरीमीटर, ऐसा नहीं होना चाहिए, डिस्टिंग्विश नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया का एज अ फंक्शन नेम होना चाहिए, और उसके पेरीमीटर अगर निकाल रहे हैं या फिर सरकमफरेंस निकाल रहे हैं तो वो उसका नाम होना चाहिए। सो इट शुड बी अ डिफाइंड what kind of a task that function will does, it will be defined with the help of a name. जनरली बोला जाता है नाम में क्या रखा है, बट नाम में बहुत कुछ रखा है फंक्शन के, ठीक है। सो इट शुड बी प्रॉपर। हाउएवर केयर मस्ट बी एक्सरसाइज टू अवॉइड डुप्लीकेट लाइब्रेरी रूटीन नेम और ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स। उसमें अब डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। इफ देर इज अ डुप्लीकेशन, जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि अगर हमारे क्लास में सेम नेम के अलग अलग पर्सन्स है, स्टूडेंट्स हैं, so it is very difficult to distinguish them. Like the common name is, we can have Vedant, correct. So multiple names are there, multiple persons are there, personalities are there of the same name. For that we just have to call them as per their roll number, which is a unique. कभी किसी का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता है, it is a unique one. So similarly function name should be also unique one. It should not be repeated, or it should not be we can say that it should not be like a printf or scanf which is already a default function, by default function. इस प्रकार के फंक्शन नेम आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट। अब ये पैरामीटर लिस्ट हम कैसे पास करते हैं, लाइक दिस parameter list declare the variable that will receive the data sent by the calling program. They serve as a input data to the function to carry out the function specification or specified task. Since they represent the actual input values, they are often referred to as a formal parameter. These parameters can also be used to send a values to the calling program. अभी ये पूरा जो पैराग्राफ डिफाइन किया गया है, that is what exactly when we use a particular function like a power, quadratic, mul का भी आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, सम का एक फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमको किस चीज़ की सम करनी है, किस रिलेटेड उसको ऑपरेट करना है, ठीक है। सो इट मस्ट हैव द सम आर्गुमेंट्स that will be passed inside the bracket, correct. So these are the some of the examples. That first thing is function type, float, double, integer. Second thing is function name, and the third thing is parameters passed to the function. Over there we can define the data type also. यहाँ पे आपने integer a, integer b, integer c आप देख रहे हो, तो वहाँ पे आप उसका डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हो। Instead of defining their data type somewhere else, we can define their data type inside the bracket also, correct. Therefore, or to remember, there is a no semicolon after the closing parenthesis. ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस हम यूज कर रहे हैं, इसके बाद में सेमीकोलन हम कहीं पे भी नहीं दे रहे हैं। नोट दैट द डिक्लेरेशन ऑफ द पैरामीटर वेरिएबल कैन नॉट बी कंबाइंड। पैरामीटर जो भी वेरिएबल्स हम दे रहे हैं उसको आप कंबाइन नहीं कर सकते, लाइक इंटीजर ए स्पेस इंटीजर बी स्पेस इंटीजर सी स्पेस इंटीजर सी डी, जो भी है ऐसे नहीं कर सकते हैं। दैट इज इंटीजर सम इन ब्रैकेट इंटीजर ए कॉमा बी, इट इज इलीगल। यानी हमने a को डिफाइन किया इंटीजर और कॉमा दे के b को भी डिफाइन कर दिया इंटीजर,
करेक्ट. इट जस्ट लाइक दैट कि हमारे क्लास में 2 वेदांत है या फिर 3 वेदांत है, तो सबको मैंने यानी एक वेदांत को मार्क्स दे दिए, यानी इट इज अप्लीकेबल टू रेस्ट ऑफ द 2 वेदांत. इट इज नॉट लाइक दैट. हियर वी आर हैविंग अ इंटीजर a, it means that it is a integer a. It is not applicable to the b. For that we have to mention integer b also, right? A function need not always receive values from the calling program. In such a cases, function have a no formal parameters. अगर void लिखते हो आप, जैसे यहाँ पे print line void लिख दिया है मैंने, in that case void print line में वो जो return type है या फिर parameters है, that is return nothing. वो return ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमको पता है कि वो print line है. print line में सिर्फ आपको एक line print होने वाली है, उसमें values थोड़ी ना आने वाली है. line is what exactly? It is a character, and character will never generates any kind of a integer or float value, and that's why we put it as a void. उसके सामने भी void लिखा है हमने फंक्शन टाइप में, और पैरामीटर पासिंग करते टाइम में भी हमने उसको void ही लिखा हुआ है. दिस फंक्शन नाइदर रिसीव्स एनी इनपुट वैल्यू नॉर रिटर्न बैक एनी वैल्यू. मेनी कंपाइलर्स accept an empty set of parentheses without specifying anything as in. उसको आप void print line ब्रैकेट में ब्लैंक चीज भी आप रख सकते हो, ब्लैंक उसको भी रख सकते हो, बट इट इज गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल. अगेन वो वही बता रहे हैं, इट इज अ गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल टू यूज अ void टू इंडिकेट अ नल पैरामीटर लिस्ट. आप उसको ब्लैंक रखो तो भी वही मीनिंग है उसका, void लिखो तो भी मीनिंग वही है. बट कुछ प्रोग्रामिंग कंपाइलर्स में, कुछ प्रोग्रामर जो कंपाइलर्स रहते हैं वो उसमें एक्सेप्ट करते हैं विदाउट void वाला पैरामीटर लिस्ट. कुछ प्रोग्रामिंग कंपाइलर में आपको डेफिनेटली void देना ही पड़ता है. सो दैट इज अबाउट द प्रिंट लाइन फंक्शन. देन फंक्शन बॉडी, उसके नीचे का जो पार्ट हम देखने वाले हैं. फंक्शन बॉडी कंटेन्स द डिक्लेरेशन एंड द स्टेटमेंट विच आर नेसेसरी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑपरेशन. जो रिक्वायर्ड टास्क है, जो फंक्शन का एक्चुअल रोल है, वो परफॉर्म करने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेटमेंट्स रहते हैं या फिर डिक्लेरेशंस रहते हैं, दैट वी आर कोटेड और दैट वी आर पुटेड इनटू द फंक्शन बॉडी. The body enclosed with a braces, that is opening and closing, contains the 3 parts. First is local declaration that specifies the variables needed by the function. Then function statements that perform the task of the function, and the return statement that returns the value evaluated by a function. अब उसमें रिटर्न फंक्शन तभी ज़रूरत रहेगा जब आप नॉन वाइड डेटा टाइप फंक्शन का अगर डिक्लेयर करते हो. void अगर डिक्लेयर करते हो तो रिटर्न टाइप कुछ रहेगा ही नहीं. करेक्ट. इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, वही उन्होंने बताया. प्रिंट लाइन अगर ये फंक्शन यूज करते हैं, वी कैन ओमिट और वी कैन अवॉइड टू राइट. ओमिट यानी निकाल देना, ओमिट द रिटर्न स्टेटमेंट. हाउएवर नोट दैट इट्स अ रिटर्न टाइप शुड बी स्पेसिफाइड एज अ void. अगर हम रिटर्न टाइप नहीं भी लिखते तो भी उसका रिटर्न टाइप ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्या है, void ही है. अगेन इट इज नाइस टू हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट इवन फॉर अ void फंक्शन ऑल्सो. अगेन उनका वही प्रैक्टिस है कि रिटर्न टाइप अगर हम लिखते हैं, क्योंकि रिटर्न टाइप यानी क्या, तो वो आपको रिजल्ट देने वाला है, वैल्यू देने वाला है. ठीक है. सो वी विल हैव सम एग्जांपल्स लाइक अ फ्लोट MUL. ये हमारा MUL नाम का एक फंक्शन है, फंक्शन नेम है, जिसका रिटर्न टाइप है फ्लोट, और जिसमें पैरामीटर हमने पास किए हैं फ्लोट x कॉमा फ्लोट y. नाउ द रिजल्ट इज, वो भी हमने डिक्लेयर कर दिया लोकल वेरिएबल. and what we want to compute, we want to compute the multiplication of the two variables, that is x into y, and the result will be written with the help of a return statement. Correct. then another style that we have void sum. अब ये sum जो है वो रिटर्न कुछ नहीं करने वाला है, बट पैरामीटर्स आर इंटीजर a एंड इंटीजर b. ठीक है. रिटर्न कुछ नहीं करेगा तो भी आप रिटर्न लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, डिपेंड्स. बट यहाँ पे जब आप सम करने वाले हो विदाउट डिक्लेयरिंग द लोकल वेरिएबल्स की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि printf स्टेटमेंट इज ऑल्सो एक्टिंग एज फॉर्मेटेड आउटपुट.
अब फॉर्मेटेड आउटपुट में हमने वो देखा था कि इफ यू आर प्रिंटिंग सम इक्वल टू परसेंट एस एंड ए प्लस बी, इन दैट केस इट विल परफॉर्म द एडिशन, ये एडिशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है बट इंटरेस्टिंग है, इससे आपको एक्चुअल कंसेप्ट डिफाइन हो जाएगा, पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज वाइड डिस्प्ले। डिस्प्ले यानी कुछ तो भी मैसेज शो करना है, वाइड। अब मैसेज शो करना है, इट जस्ट मीन दैट देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिटर्न टाइप और पैरामीटर, दस वी डोंट रिक्वायर एनी लोकल वेरिएबल, वी रिक्वायर ओनली द प्रिंटफ स्टेटमेंट। डबल कोट्स में लिखा हमने नो टाइप और नो पैरामीटर, एंड इट विल रिटर्न और इट विल प्रिंट दैट पर्टिकुलर डेटा। दैट्स व्हाई display function is used with a null parameter and void data type. When a function reaches, कुछ notes दिए उन्होंने, when a function reaches its return statement, the control is transferred back to the calling program. In the absence of a return statement, the closing braces act as a void return. अगर हमने return statement दिया ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि कोई ज़रूरत नहीं है देने की, क्योंकि रिटर्न कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, in that case your closing braces or closing bracket is acting as a void return. ये भी एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि आपके फंक्शन में रिटर्न टाइप void है और आपने रिटर्न नहीं लिखा है, तो इस केस में कौन ऐसा है आपके प्रोग्राम में कि जो एक्ट करेगा एज अ void रिटर्न, दैट इज व्हाट अ क्लोजिंग ब्रेसेस। ठीक है, a local variable is a variable that is defined inside a function and used without having any role in the communication between the function. अब जब आप उसको कॉल करते हो तभी वो इन्वोक होता है, till that it is not or it is used without having any role in the communication between the function. दो फंक्शन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, लाइक मेन फंक्शन में प्रिंट लाइन फंक्शन कॉल किया गया, तो उस केस में ये वेरिएबल्स जो रहते हैं लोकल वेरिएबल्स, इनका कोई डेफिनेशन नहीं रहता है मेन फंक्शन में, बट ओरिजिनल फंक्शन जो है प्रिंट लाइन फंक्शन है उसमें उसकी डेफिनेशन रहेगी या फिर उसका डिक्लेरेशन रहेगा। राइट, नाउ वी स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिटर्न वैल्यूज एंड देयर टाइप्स। यानी अब तक के हम ये बोल रहे थे कि void अगर है, इन दैट केस देयर इज नो नीड, अगर नहीं भी है नीड तो भी आपका जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इट इज एक्टिंग एज अ void रिटर्न, करेक्ट। बट अगर इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, डेटा टाइप या फिर फंक्शन टाइप, in that case what kind of values will be written and what their types, that we will discuss. As pointed out earlier, a function may or may not send back any value if there is a character to the calling function. If it does, it is done through a return statement. ये अगर होता है यानी इंटीजर या फ्लोट या डबल रहता है तो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू उसका डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। While it is possible to pass the called function any number of values, the called function can only return a one value per call at most. अब ये कैसे होता है ये हम देखने वाले हैं। The return statement can be one of the following forms. डायरेक्ट हम रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे, सेमीकोलन दे देंगे, ये भी एक फॉर्मेट है, और रिटर्न लिखेंगे और एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, या फिर फंक्शन नेम भी लिख सकते हैं, या फिर void भी लिख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है ऐसे void की, बट हम वहाँ पे लिख सकते हैं, करेक्ट। द फर्स्ट, द प्लेन रिटर्न डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, वी नो इट। अगर रिटर्न के सामने हमने कुछ भी लिखा नहीं है, इट मीन्स दैट ये फॉर्मेलिटी के लिए हम लिख रहे हैं, अदरवाइज देर इज नो नीड। इट एक्ट as much as the closing braces of the function. लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये जो रिटर्न लिखा है सिंगल रिटर्न, it is just for a purpose, it is just for the purpose that it should be has a practice. practice अगर है, नॉर्मल प्रैक्टिस है, उस केस में आप इसको लिखना चाहिए, और अगर नहीं लिखते हैं तो भी वो क्लोजिंग ब्रेसेस जो है उससे वही सिमिलर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। नाउ
when the written expression was there, ये चीज जो हम लिखते हैं, when a return is encountered, the control is immediately passed back to the calling function. An example, that example of the use of a simple return is as below. If error, अब if के नीचे if में हमने क्या लिखा, पैरामीटर एज एरर, और रिटर्न टाइप लिख दिया रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे एक नोट है C99, इफ अ फंक्शन इज स्पेसिफाइड एज अ रिटर्निंग अ वैल्यू, द रिटर्न मस्ट हैव वैल्यू एसोसिएटेड विथ इट। ये हम एक्चुअल में प्रोग्राम में देखने वाले हैं कि ये कैसे वर्क होता है। नाउ integer mul, integer x and integer y, two parameters are passed to the function name mul which is having a return data type जो उसका है वो है integer. Now integer p, ये एक हमने लोकल वेरिएबल ले लिया in which we are storing the multiplication of x and y, x और y की मल्टीप्लिकेशन हम p में स्टोर करेंगे, and instead of writing any kind of a printf statement we are using over there return p. return p यानी क्या, ये return p जब भी invoke होगा when it is called, which is the product of the values of x and y, the last two statements can be combined into the one statement as follow. कैसे उसको कंबाइन कर सकते हैं, इस प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं आप, रिटर्न इन ब्रैकेट x इंटू वाई। अब x इंटू वाई किसको डिनोट कर रहा है, p को ही डिनोट कर रहा है। एक्स वाई के जगहों पे p लिखो या फिर p के जगहों पे एक्स वाई, वाइस वर्सा इट इज ऑल्सो पॉसिबल, करेक्ट। अ फंक्शन में हैव अ मोर देन वन रिटर्न स्टेटमेंट। अब एक फंक्शन में एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट रह सकते हैं। This situation arises when the values return is based on a certain condition, जैसे true and false रहता है। अगर आपकी एज 45 प्लस है तो आपको वैक्सीन मिलेगी, आपकी एज अगर 45 प्लस नहीं है तो आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी। ये एक टर्मिनोलॉजी है। एक और टर्मिनोलॉजी है, एक कंडीशन है, इफ योर एज इज मोर देन 18 देन यू विल गेट द वैक्सीन, बट इफ इट इज लेस, इन दैट केस इन अ होल कंट्री, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में आपको वैक्सीनेशन कभी कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बिकॉज योर एज इज लेस देन 18 एंड फॉर लेस देन 18 वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। जो फॉर्मूला रहना चाहिए या फिर जो उस एज के हिसाब से कॉम्बिनेशन, मेडिकल कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, दैट वैक्सीनेशन इज नॉट अवेलेबल। इन दैट केस टू रिजल्ट्स में बी ऑकर, एट अ टाइम नहीं होंगे बट वन बाय वन, कभी ये रिजल्ट रह सकता है, कभी यानी कभी ट्रू रह सकता है, कभी फॉल्स रह सकता है, ठीक है। इन दैट केस वी कैन हैव मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स सच एज इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0, अब 0 भी रह सकता है और लेस देन भी रह सकता है, ठीक है। इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू यानी लेस देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू ये एक कंडीशन हो गई, और ग्रेटर देन वाली एक कंडीशन होगी। तो अगर लेस देन है और इक्वल टू भी है यानी 0 है, अगर लेस देन है यानी -1 है, -2 है, -3 है, तो क्या होगा, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और वो रिटर्न क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। एल्स वो रिटर्न क्या करेगा, 1, बिकॉज x की वैल्यू अगर 10 है, सो 10 लेस देन और इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स केस में क्या होगा, आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। सो व्हाट टाइप ऑफ अ डेटा डज द फंक्शन रिटर्न, अब यहाँ पे किस प्रकार का डेटा उसने रिटर्न किया है। ऑल द फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिटर्न द इंटीजर डेटा टाइप, अगर उसको कैरेक्टर डिफाइन नहीं किया होगा तो, बट व्हाट हैपन्स इफ अ फंक्शन मस्ट रिटर्न सम अदर टाइप, जनरली तो इंटीजर डेटा टाइप ही रिटर्न करता है, बट अगर नहीं करता है, दूसरा करता है, तो क्या होता है, we can force a function to return a particular data of a type of a data by using a type specifier in the function header as discussed earlier। अब फंक्शन हेडर में हम उसको फोर्सफुली बोल सकते हैं कि आप इंटीजर टाइप का ही डेटा रिटर्न करो, रेस्ट ऑफ द अदर डेटा टाइप आप रिटर्न मत करो, यह हम उसको फोर्सफुली बोल सकते हैं। कैसे, व्हेन अ वैल्यू इज रिटर्न इट इज ऑटोमेटिकली कास्ट टू द फंक्शंस टाइप, जब भी वैल्यू रिटर्न होती है
तो डेटा टाइप जो रहेगा फंक्शन का वो उसमें ढल जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम देख रहे हैं, इन द फंक्शन दैट डू कंप्यूटेशंस यूजिंग अ डबल्स 2.5 इंटू 3.0, अब ये जो वैल्यू है ये तो फ्लोट है या फिर डबल है, 8, still it returns the integer. The return value will be truncated to an integer for an instance for the following function or following thing, integer product and void. void यानी क्या, तो उसमें पैरामीटर कुछ भी नहीं है, बट प्रोडक्ट ये जो फंक्शन है इसका जो फंक्शन टाइप है दैट इज व्हाट है इंटीजर, बट वैल्यू जो पास कर रहे हैं हम वो तो फ्लोट है। इसका मतलब फ्लोट वैल्यू होने के बावजूद भी it will return the value 7 because only integer part of the result will be generated or it will be written, because we are forcing to that product function it should return only the integer value, not the float one. अब ये कुछ कुछ जगहों पे important भी रहता है, जैसे अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ योर परसेंटेज इज रिक्वायर्ड, टेंथ या ट्वेल्थ की अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, वो डेसिमल प्लेस के बाद का कुछ आपको रिक्वायर्ड नहीं है, 70% है, 80% है, 82 है, 85 है, सिर्फ इतना ही चाहिए। इन दैट केस वी कैन यूज फोर्सफुल डिक्लेरेशन और फोर्सफुल एक्सेस ऑफ अ रिटर्न टाइप और डेटा टाइप दैट इज इंटीजर। अदरवाइज we can use डायरेक्ट डेटा टाइप। फ्लोट है तो फ्लोट प्रोडक्ट void आप लिख सकते हो, तो उसमें रिटर्न टाइप जो रहेगा, रिटर्न जो भी डेटा मिलेगा वो फ्लोट ही मिलेगा। या फिर आप वैल्यू जो पास कर रहे हो 2.5 की जगह पे आप पास करो 2 और 3, यू विल गेट द इंटीजर डेटा टाइप और इंटीजर डेटा, तो उसका डेटा टाइप भी इंटीजर ही रहेगा। देन स्विच टू द फंक्शन कॉल्स। Now how we can does that particular part, and which is very important, function calling is very important. Internal function call, explicit function, explicit, implicit and explicit function calls are there, so we'll see it under the heading of the function call. Now function call is what? Function can be called by simply using the function name followed by the list of actual parameters or the arguments. Parameters यानी क्या, तो arguments ही होती है। if any enclosed in the parenthesis, like example main integer y, ये एक हमने लोकल वेरिएबल लिया, y इक्वल टू mul इन ब्रैकेट 10,5, यहाँ पे जनरली हम y इक्वल टू क्या करेंगे, x इंटू वाई करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी डू द फंक्शन कॉल। हमने क्या यहाँ पे यूज किया, फंक्शन को कॉल कर लिया, उसको बुला लिया कि भाई हम x और y के जगहों पे अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करने के जगहों पे, या फिर a और b के दो वेरिएबल्स हमने यूज करने के जगहों पे हमने क्या कर लिया, फंक्शन को ही बुला लिया, भाई तू आ जा और तू ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करके दे, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन तू परफॉर्म करके दे। अब वो कैसे परफॉर्म करेगा, अब वो परफॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ अ पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर्स। और जो MUL हमने लिखा है, तो MUL नाम का कोई तो भी एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ रहेगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, अब अपार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन के अलावा एक MUL नाम का फंक्शन डिफाइन किया रहेगा और उसको वो क्या करेगा, कॉल करेगा। नाउ हाउ दैट कॉलिंग विल बी डन, यहाँ पे हमने y इक्वल टू MUL लिख दिया और MUL में हमने पैरामीटर पास कर दिया विच इज एक्चुअल पैरामीटर, एंड दैट इज नथिंग बट द फंक्शन कॉलिंग। अब यहाँ से कर्सर पॉइंट क्या करेगा, डायरेक्टली जो फंक्शन लिखा हुआ होगा आपने, जिसकी डेफिनेशन लिखी होंगी, वहां पे वो जंप करेगा, इंटीजर MUL, integer x comma integer y. Now it will map that values 10 and 5 with x and y. वो क्या करेगा, उसको मैपिंग करेगा, इंटीजर x के जगह पे वो रखेगा इंटीजर 10 और इंटीजर y के जगह पे वो रखेगा इंटीजर 5। बोथ आर इंटीजर वैल्यू, यानी जो पैरामीटर पास किए गए थे एक्चुअल पैरामीटर वो इंटीजर है, सो देर इज नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट ऑपरेशंस दैट दे have to possess under the MUL function, that is what, एक टेम्पररी वेरिएबल यानी लोकल वेरिएबल हमने लिया इंटीजर p, और p में हम क्या कर रहे हैं, x एंड y की मल्टीप्लिकेशन स्टोर कर रहे हैं, एंड दैट p विल बी रिटर्न, p क्या होगा, रिटर्न किया जाएगा, एंड नाउ वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ y, यानी
y में हमने फंक्शन को कॉल किया, y की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, बट ये सारी चीज़ें मेन फंक्शन में नहीं कर रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें हैं मेन फंक्शन के बाहर एग्जीक्यूट हो रही है। अगर किसी को पता होगा कि सिविल इंजीनियरिंग में अभी बहुत ज़्यादा, सिविल इंजीनियरिंग बोलो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बोलो, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी यूटिलाइज होती है। जैसे अगर किसी को 20, 25, 50 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो उसमें रेडीमेड कुछ चीज़ें लाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि अगर स्लैब अगर डालना है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है, फ्लोरिंग बनानी है, फ्लोरिंग करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए स्लैब डालना है, तो उसको आप 21 डेज 30 डेज आप उसको बनाने के बाद पानी वगैरह देते हो, वाटरिंग करते हो, सो दैट इट विल बिकम अ मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग। सो ये जो चीज़ है, ये एक्चुअल साइट पे ना इम्प्लीमेंट करते हुए कहीं और जगहों पे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उतने बाय उतने का डायमेंशन, लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट का डायमेंशन जो लेते हैं, with the help of that they made a one slab somewhere else, और उसको वहाँ से वो पिकअप करते हैं और वो एक्चुअल साइट जो आपकी बिल्डिंग चल रही है वहाँ पे लाके बिठा देते हैं, फिट कर देते हैं नट एंड बोल्ट से। सो इट विल रिड्यूस द टाइम। ये क्या करता है, आपका टाइम बहुत बचाता है, बिकॉज ऑन एक्चुअल साइड इफ यू आर डूइंग इट, तो हर एक मंजिल के लिए आपको एक एक महीना लगेगा। सो अगर आपकी बिल्डिंग 25 फ्लोर्स की है तो आपको 25 मंथ्स लगेंगे। इतने साल कोई रुक सकता है? 25 मंथ्स, इट्स ऑलमोस्ट 2 year and 1 month. So instead of that, ready-made construction things that are bring from another place, they are fitted and your home or your building is completed within a few months. That is what the same function that we are using over here. Instead of writing, instead of using main class as a primary source of or primary execution class, we are using some another part or some other functions which will be executed outside of main class, and it will generate the result or it will return the result to the main class, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं y equal to mul in bracket 10,5। मल्टीप्लीकेशन तो होके रहेगा 10 और 5 में, रिजल्ट स्टोर होगा y में, बट ये चीज़ होगी कहाँ पे? आउटसाइड ऑफ मेन फंक्शन। और जिसके वजह से प्रोग्रामिंग फास्ट होती है, जिसकी वजह से टेस्टिंग इजी हो जाता है, जिसके वजह से डिबगिंग इजी हो जाता है। सो दिस फीचर कैन बी एडेड इनटू द सी प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द यूज ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये सबसे बड़ा यूज है यूजर डिफाइंड फंक्शन का, जिसमें आप ऐसे बहुत सारे फंक्शंस लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो, और उनको आप कॉल कर सकते हो मेन फंक्शन में, जिसके वजह से मेन फंक्शन बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रहेगा। उसमें इतना सारा कोड नहीं रहेगा। एरर अगर आती है तो किसी एक फंक्शन में अगर आती है तो वो आइडेंटिफाई इजीली हो सकती है, डिबगिंग पार्ट बहुत इजीली हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई वी यूज द function, and inside that we use the function call. Now how it will work? When a compiler encounters a function call, जब compiler function call को invoke करता है, encounter करता है, उसको बुलाता है, the control is transferred to the function mul। ये जो mul है उस पर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। दिस फंक्शन इज देन एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन एज डिस्क्राइब्ड, and a value is returned when a return statement is encountered। अब ये जो फंक्शन है mul, उसको फंक्शन ने कॉल कर दिया यहाँ पे मेन फंक्शन में। अब यहाँ पे कॉल करने के बाद क्या होगा, mul इन्वोक होगा या फिर इनकाउंटर्ड होगा, वो एक्शन में आ जाएगा, और वो उसमें जो भी लाइंस लिखी हुई होंगी, स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, कुछ डेफिनेशंस लिखी होंगी, वो एग्जीक्यूट होगी, एंड इट विल रिटर्न द वैल्यू। वो क्या करेगा, फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू विच विल बी असाइन टू द y वेरिएबल विच इज ऑल्सो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन मेन फंक्शन, एंड इट विल प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ y, एंड दस वी विल गेट द डिजायर रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आपको रिक्वायर्ड है वो डिजायर रिजल्ट उसमें आपको मिल जाएगा। सो दैट इज द रोल ऑफ अ
function call, right? Now here function call sends the two integer values 10 and 5. यहाँ पे वो जो 10 and 5 को send करेगा, so it will just like that 10 and 5, और we have different ways. इसके लिए आप different ways भी access कर सकते हो. यहाँ पे उन्होंने बताया है एक्चुअल एग्जीक्यूशन कैसे होता है, जो मैंने अभी वर्ड के थ्रू बताया, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो. which are assigned to the x and y respectively. The function computes the product x and y, and that will be stored into the variable p, and then it returns the value 25. 10 into 5, 25, which is a wrong. So it is a book. We can see here is the wrong answer. 10 into 5 is the value, that is a 50. Multiplication हो रहा है, ठीक है, 5 into 5 नहीं हो रहा है. So this value will be the 50, not 25. So those having a notes, or those having a book, Bal Guru Swami, on the page number 378, we just have to make a correction. 10 into 5 must be the 50, not the 25. ठीक है, यहाँ पे values भी हमने जो use की है 10 and 5 use की है. So the answer will be the 50, not the 25, and it return the 50 to the main, where it is assigned to the y again. So that is what we are talking. Y को value मिल जाएगी which is calculated into the main, which is calculated into the MUL function, not into the main function, right? जैसे एक और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि शोरूम एंड गोडाउन, कोई भी एक जो डीलर रहते हैं उनका एक शोरूम रहता है जिसमें बहुत ही लिमिटेड स्टॉक वो वहाँ पे रखते हैं, और फ्रेश स्टॉक वहाँ पे रखते हैं वो. बट गोडाउन में नया भी माल रहता है, पुराना भी माल रहता है, सभी चीज़ें वहाँ पे गोडाउन में वो रखते हैं, ठीक है. नाउ व्हेन वी वांट टू परचेस एनीथिंग, जब आप परचेस करते हो कोई भी चीज़ शोरूम से, तो आप क्या बोलते हैं कि हमें पैक पीस चाहिए. वो ऐसा जो डिस्प्ले वाला पीस रहता है, लोगों को दिखाने वाला जो पीस है, वो नहीं चाहिए, पैक पीस चाहिए. तो वो क्या करते हैं, आपको गोडाउन से पैक पीस ला के देते हैं, और आपके सामने उसका ओपनिंग करते हैं, सील वगैरह ओपन करके फिर आपको बताते हैं कि दिस वन इज द वन पैक पीस, ठीक है. तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है. प्रोसेसिंग पार्ट जो है, स्टोरेज पार्ट जो है, वो है गोडाउन में, वहाँ से वो इन्वोक किया जाता है जो आपको चाहिए. सभी की सभी चीज़ें नहीं ला के बताया जाती हैं. जो सैम्पल चीज़ें वो आपके सामने रखी जाती है. जैसे टीवी के शोरूम में अगर आप जाते हो तो आपको LG का, सैमसंग का, या फिर वीडियोकॉन का, सोनी का टीवी बताएंगे. उसमें से जो आपको पसंद है उतने साइज का, एग्जैक्ट साइज का आपको टीवी वो लाके बताएंगे गोडाउन से, और वो आप परचेस कर लोगे, ठीक है. तो जो प्रोसेसिंग पार्ट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, जो एक्चुअल पार्ट हुआ है वो गोडाउन में हुआ है. यहाँ पे हमने मेन फंक्शन के थ्रू और मेन क्लास में हमने क्या किया, सिर्फ हमने उस पर्टिकुलर मॉडल को एक्सेस किया जो हमको चाहिए, ठीक है. तो इसलिए इसके कुछ डिफरेंट वेज भी है. देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू कॉल द फंक्शन दैट लिस्टेड बिलो. अब लिस्ट उसके उसमें दी गई है कि किस प्रकार के अलग अलग फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं. Different ways to call the function listed below. There are the some of the ways to call the function MUL. MUL को हम कैसे कॉल सकते हैं, कर सकते हैं MUL in bracket 10,5. then MUL m,5, m की वैल्यू क्या रहेगी, हम रन टाइम में इनिशियलाइज करेंगे. then MUL 10,n और MUL m,n. m की वैल्यू आप यूजर से ले सकते हो, n की भी वैल्यू आप यूजर से ले सकते हो. then MUL m plus 5 comma 10. So 10 will be the constant, but m plus 5 that will be the variable one. m की जो भी वैल्यू रहेगी उसमें 5 ऐड होंगे, वो जो वैल्यू बनेगी that will be passed to the integer x comma y, ठीक है. डेफिनेशन ऑफ MUL फंक्शन उसमें पास की जाएगी. then we are using MUL 10 comma MUL m comma n. फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन इनसाइड द फंक्शन, ये भी एक पॉसिबल है. देन फंक्शन MUL एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशनल, एक्सप्रेशन 1, मैं इसको L रीड कर रहा था. एक्सप्रेशन 1
एक्सप्रेशन 2, ये भी आप दे सकते हो। एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 यानी क्या, MUL x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई। अब x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। सो दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ अ डिफरेंट वेज, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ when the function call is there, how we can actually does it. A function call is a postfix expression. The operator dot dot is at a very high level of a precedence. Precedence level यानी उसकी level of accession ये बहुत ज़्यादा ऊपर है। जैसे हम बोर्ड मास यूज़ करते हैं तो ब्रैकेट पहले इवेल्यूएट होता है, बोर्ड मास तो m मल्टीप्लिकेशन MA कंचे भागु भागाकार कंचे भागु गुणाकार मीन्स मल्टीप्लिकेशन, भागाकार मीन्स डिवीजन, देन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। बोर्ड मास दैट वी आर यूजिंग, करेक्ट। आई विल ऑलवेज रिमेंबर इन मराठी, सो कंचे भागु बेव, ठीक है, बट इट इज इन द बोर्ड मास इन इंग्लिश। सो highest precedence value of this dot operator that is used, double dot operator that are used. So how that will work, that we will see. When a function call is used as a part of a expression, it will be evaluated first. ये पहले evaluated होता है, first evaluated होता है, unless parentheses are used to change the order of precedence. parentheses अगर है तो फिर order change हो सकती है. In a function call, the function name is operand and the parenthesis set dot dot which contains the actual parameter is operated. The actual parameter must be match or must match the function's formal parameter in the type, order and the number. Multiple actual parameter must be separated by the commas, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन कॉल के रिलेटेड उन्होंने चीज़ें बताई गई है कि हाउ वी कैन एक्चुअली इन्वोक इट। कुछ नोट्स भी दी गई है, नोट्स में उन्होंने बताया कि ये जो नोट्स रहते हैं जो भी ऐसे फॉर्मेट में दिया जाता है जैसे हाईलाइटेड पोर्शन में, यू मस्ट हैव टू गो थ्रू इट बिकॉज MCQ based questions are mostly asked on this part, right? So we are having a, if the note is there, first note is there, if the actual parameter are more than the formal parameter, the extra actual parameter will be discarded. ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में आया होगा कि एक्चुअल पैरामीटर पास किए गए हैं 5 और फॉर्मल पैरामीटर से 3, तो ये मिसमैच हो जाएगा, 2 ज़्यादा के हैं तो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ द एक्चुअल पैरामीटर्स आर लेस than the formal, the unmatched formal arguments will be initialized to the some garbage value. अब ये वाइस वर्सा अगर कर दिया हमने, एक्चुअल पैरामीटर्स जो है वो कम है, वो 3 ही है, और फॉर्मल पैरामीटर्स जो है जो फंक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं वो 5 है, तो जो 2 है वो इनिशलाइज किए जाएंगे और उनको गार्बेज वैल्यू असाइन कर दी जाएगी, विच इज़ नॉट गुड. एनी मिसमैच इन द डेटा टाइप मे ऑल्सो रिजल्ट इन द सम गार्बेज वैल्यूज. वो तो हमेशा होता ही है कि अगर मिसमैच अगर है तो उसमें गार्बेज वैल्यू आती है. देन फंक्शन डिक्लेरेशन. अब ये फंक्शन को डिक्लेयर हम कैसे कर सकते हैं वो हम पार्ट देखेंगे डिटेल में, ठीक है. लाइक अ वेरिएबल डिक्लेरेशन, all the function in the C program must be declared first before it should be used or before it should be called. Function declaration is nothing but the function prototype, and which is consist of the 4 types. First one is function type, second one function name, third one parameter list, and next one is terminating semicolon. यहाँ पे सेमीकोलन यूज होता है फंक्शन डिक्लेरेशन में. फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर. तो उसके कुछ पॉइंट्स हम डायरेक्टली देखेंगे क्योंकि हमको ये पता है इंटीजर MUL और इंटीजर M कॉमा इंटीजर N ये एक फंक्शन प्रोटोटाइप है या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन है. सम पॉइंट्स दैट वी हैव टू कंसीडर, दैट पैरामीटर लिस्ट मस्ट बी सेपरेटेड बाय द कॉमाज. ये जो पैरामीटर लिस्ट आप दे रहे हो ना, इट शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा. इट शुड बी डिक्लेयर्ड इंडिविजुअली विथ अ डेटा टाइप. डेटा टाइप भी उसका इंडिविजुअल डिक्लेयर्ड होना चाहिए. द पैरामीटर नेम डू नॉट नीड
टू बी द सेम इन द प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन एंड द फंक्शन डेफिनेशन। जहाँ पे मैंने इंटीजर m और इंटीजर n अगर लिया है फंक्शन डिक्लेरेशन में, ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन जो हम क्या करते हैं वॉइड मेन के ऊपर करते हैं, उसमें जो पैरामीटर यूज़ किए हैं और जो डेफिनेशन में पैरामीटर यूज़ किए हैं वो दोनों के दोनों सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे भी इंटीजर m, वहाँ पे भी m, यहाँ पे भी इंटीजर n, वहाँ पे भी n, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, डू नॉट नीड टू बी द सेम। द टाइप मस्ट मैच द टाइप्स of a parameter in the function definition in a number and order। अब इसमें कैसा है कि अगर मैं फंक्शन प्रोटोटाइप में इंटीजर m एंड इंटीजर n यूज कर रहा हूँ और फंक्शन डेफिनेशन में फ्लोट m और फ्लोट k यूज कर रहा हूँ, k कहाँ से आ गया ये k, तो k नहीं चलेगा, फ्लोट भी नहीं चलेगा, इट शुड बी इंटीजर एंड इट शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो k चल जाएगा एक बार का, बट आपका जो m है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, n जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, और मिसमैच इन द डेटा टाइप वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऑर्डर जो है, जैसे मैं पहला वेरिएबल अगर ले रहा हूँ हाइट ऑफ द पर्सन, दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ वेट ऑफ द पर्सन, और तीसरा वेरिएबल ले रहा हूँ मैं BMI, BMI रहता है ना वो बॉडी मास इंडेक्स, वो, बट उसका सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए प्रोटोटाइप में भी और फंक्शन डिक्लेरेशन में भी, वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए, पहले BMI आ गया फिर वेट आ गया फिर हाइट आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ऑर्डर शुड बी मेंटेन। यूज ऑफ अ पैरामीटर नेम्स इन द डिक्लेरेशन इज ऑप्शनल। पैरामीटर्स की जो नेम्स है उनका डिक्लेरेशन वो ऑप्शनल है। इफ द फंक्शन हैज अ नो फॉर्मल पैरामीटर द लिस्ट इज रिटन एज अ void। अगर पैरामीटर नहीं है, जैसे हमने प्रिंट लाइन फंक्शन में यूज किया है void, कुछ था ही नहीं पैरामीटर पास करने के लिए, तो हमने उसको void ले लिया, या फिर ब्लैंक भी ले सकते हो, बट कुछ कंपाइलर ब्लैंक एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कंपाइलर नहीं करते, तो बेटर वे है कि void ले लेना चाहिए। 6 नंबर, द रिटर्न टाइप इज ऑप्शनल व्हेन द फंक्शन रिटर्न्स इट इंटीजर, व्हेन द फंक्शन रिटर्न्स int टाइप डेटा, इंटीजर टाइप डेटा, तो उस केस में क्या होता है कि द रिटर्न टाइप इज ऑप्शनल व्हेन द फंक्शन रिटर्न्स द इंटीजर। हाँ, तो इंटीजर टाइप अगर है तो आप उसमें रिटर्न टाइप लिखते हो तो भी ठीक है, नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, वो इंटीजर कंसिडर कर लेगा। बट रीटाइप मस्ट बी वाइड इफ नो वैल्यू इज रिटर्न, जो इसके पहले भी हमने देखा है कि उसमें वाइड लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो। ठीक है, then 8 number and last one, when the declared types do not match with the types in the function definition, compiler will produce an error। declare type यानी integer m integer n अगर लिखता हूँ मैं and it will not match with the types float m float a float b लिख रहा हो तो वो मैच नहीं करेंगे डेटा टाइप, तो उस केस में आपको एरर मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, so these are the some of the things under the function prototype। Then category of function that we will see, there are the 5 categories। First category is function with no arguments and no return value, void। function में argument भी कुछ भी नहीं है और return value भी नहीं है, वो हमने यूज किया है void print line void। Then second type, that is second category, function with arguments and no return value, void mul in bracket इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। देन फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड वन रिटर्न वैल्यू, इंटीजर mul इन ब्रैकेट इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, ये होगी थर्ड कैटेगरी, यानी थर्ड नंबर की कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी नहीं थर्ड नंबर की कैटेगरी। कैटेगरी 4, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स बट रिटर्न अ वैल्यू, मीन्स इंटीजर mul इन ब्रैकेट void, यानी रिटर्न वैल्यू ही नहीं है, यानी सॉरी नो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ही नहीं है। ठीक है, इंटीजर mul इन ब्रैकेट
ब्लैंक रखो या फिर void रखो, आर्गुमेंट देना ही नहीं है हमको. एंड द लास्ट कैटेगरी फिफ्थ, फंक्शन दैट रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज. जैसे इफ एल्स लगाया हमने, तो इफ में आप में रिटर्न वैल्यू रहेगी इफ के लिए, रिटर्न 0 और रिटर्न 1 और रिटर्न p और रिटर्न q, एनीथिंग. So in that case multiple return values are there. So this is the one of the category of a function. ठीक है, तो पहली कैटेगरी हम देखेंगे नो आर्गुमेंट्स नो रिटर्न वैल्यूज. तो यहाँ पे क्या होगा, एक एग्जांपल है, यहाँ पे विल हैव द एग्जांपल नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यूज. सो वाइड वैल्यू वाइड जो हमने प्रिंट लाइन में यूज किया, ठीक है, दोनों जगहों पे नथिंग टू बी रिटर्न, पैरामीटर भी कुछ भी नहीं है और डेटा टाइप भी कुछ भी नहीं है. सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट कैटेगरी. Then we switch to the second category, arguments but no return values. तो उसका भी एक एग्जांपल देखेंगे हम, that in that case void print line character ch. ये एग्जांपल हमारा बहुत बार यूज हो रहा है, प्रिंट लाइन वाला, void print line character ch. फंक्शन रिटर्न टाइप क्या है और फंक्शन टाइप क्या है, void. वैल्यूज क्या जा रही है पैरामीटर के, इसमें कैरेक्टर की वैल्यूज जा रही है. इसका मतलब क्या है, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ आर्गुमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यूज. आर्गुमेंट्स तो पास कर रहे हैं हम, पासिंग द आर्गुमेंट्स इनसाइड द ब्रैकेट कैरेक्टर ch, बट रिटर्न टाइप क्या है, void है, देयर इज नो रिटर्न. करेक्ट. देन देयर इज अ प्रोग्राम फॉर इट. कैलकुलेट द principal some program was there that void value float and integer, then void print line character ch. तो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या हो रही है, पास की जा रही है, बट टाइप जो है दैट इज व्हाट अ नो रिटर्न टाइप. ठीक है. देन स्विचिंग टू द आर्गुमेंट्स विथ अ रिटर्न वैल्यूज, यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आर्गुमेंट्स भी पास कर रहे हो और रिटर्न वैल्यूज भी है, रिटर्न भी है वहाँ पे. ठीक है, विच इज अ क्वाइट यूज्ड, जनरलाइज यूज. ठीक है. void print line कैरेक्टर ch इंटीजर len. तो यहाँ पे आपने रिटर्न जो यूज किया होगा वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोट है, फ्लोट p, फ्लोट r, फ्लोट n. ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा. तो ये रिटर्न वैल्यू इज देयर, रिटर्न पार्ट इज देयर, बट वी मस्ट हैव टू गिव द आर्गुमेंट्स आल्सो. ठीक है, आर्गुमेंट्स भी देने पड़ेंगे और आपको वहाँ पे रिटर्न भी लिखना पड़ेगा. करेक्ट. सो इफ देर इज अ फ्लोट वैल्यूज, इन दैट केस वी कैन ऑल्सो यूज दैट रिटर्निंग वैल्यू एज अ फ्लोट. ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे पावर कैलकुलेट करने के लिए, राइट अ फंक्शन पावर दैट कंप्यूट्स द x रेज टू द पावर y फॉर इंटीजर x एंड y एंड रिटर्न्स द डबल टाइप वैल्यू. जैसे इस एक प्रोग्राम में हम देख सकते हैं कि इंटीजर x कॉमा वाई दैट इज इनपुट लोकल वेरिएबल, डबल पावर ये है फंक्शन कॉल. ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप. ठीक है, तो डबल कॉल जैसे हम बोलते हैं, डबल फंक्शन जैसे पावर बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, इंटीजर x एंड y विल बी इन्वोक, डबल p एक हमारा वेरिएबल है, p इक्वल टू 1.0 x to the power 0. Then if y is greater than or equal to 0, then while y minus minus, it computes the positive power. So p points to the x, यानी x की जो वैल्यू है वो स्टोर की जाएगी पॉइंटर वेरिएबल में. ठीक है. else while y प्लस प्लस, यहाँ पे हमने while भी यूज किया और if else भी यूज किया है. So p डिवाइडेड बाय और डिवाइडेड इक्वल टू x, यानी p इक्वल टू p बाय x. इसका मीनिंग क्या हो गया, p इक्वल टू p बाय x, दैट इट रिटर्न्स द वैल्यू p. तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, printf scanf एंड देन प्रिंट द डेटा. तो यहाँ पे हमारे जो रिटर्न टाइप है वो भी यूज हो रहा है. देन डबल दिया हुआ है हमने पावर फंक्शन को, तो उसका फंक्शन टाइप भी डबल है, इंटीजर x एंड y, तो पैरामीटर्स भी हम पास कर रहे हैं. सो बोथ थिंग्स आर डन इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. लेटर ऑन नेक्स्ट कैटेगरी इज
नो आर्गुमेंट्स बट रिटर्न अ वैल्यू। आर्गुमेंट क्या है, पैरामीटर क्या है, वो कुछ भी नहीं है, बट वैल्यू विल बी रिटर्न। लाइक ओवर हियर इंटीजर गेट नंबर, यहाँ पे गेट नंबर हम बोल रहे हैं, यानी नंबर हम यूजर से डिमांड कर रहे हैं, बट यहाँ पे पैरामीटर क्या पास किया हमने, नथिंग, वॉइड। बट इंटीजर कौन सा नंबर गेट करना चाहते हैं हम, लेना चाहते हैं फ्रॉम यूजर से, दैट विल बी द इंटीजर ओनली, करेक्ट। नाउ द फंक्शन दैट रिटर्न्स द मल्टीपल वैल्यूज, फंक्शन दैट रिटर्न्स द मल्टीपल वैल्यूज, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स हम यूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वाइड मैथ ऑपरेशंस, जिसमें यहाँ पे इंटीजर x है, y है, इंटीजर स्टार ऑफ s, स्टार s, then integer star d which is the pointer variable, correct. So integer x equal to 20, y equal to 10 and s and d को आपने कोई वैल्यू नहीं असाइन की क्योंकि वो एड्रेस को स्टोर करने वाले हैं। सो मैथ ऑपरेशन x, y एम्परसेंट s एम्परसेंट d, तो ये एम्परसेंट s एंड एम्परसेंट d क्या है, इट इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ s एंड एड्रेस ऑफ d which will be calculated like this, इंटीजर a एंड इंटीजर b, ये तो दो रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर x एंड इंटीजर y को, बट स्टार मीन्स पॉइंटर s एंड पॉइंटर d को कौन रिप्रेजेंट करेगा, सम एंड डिफरेंस, पॉइंटर सम इक्वल टू a प्लस बी एंड पॉइंटर डिफरेंस इक्वल टू a माइनस बी। ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, दैट विल बी रिटर्न और दैट विल बी प्रिंट द वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, वाइड रखा है हमने, बट पैरामीटर पास किए हैं हमने, तो s की वैल्यू और d की जो वैल्यू है वो आपको मिलेंगी, a प्लस बी विल बी द s वैल्यू एंड d की वैल्यू a माइनस b। in this particular program we are passing the parameters but there is no return, ठीक है। now there is a some of the rules that for the pass by pointers, ये पॉइंटर का जो कंसेप्ट है इसके आगे आने वाला है, बट उसमें कुछ रूल्स हैं। द टाइप ऑफ द एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट मस्ट बी सेम, विच इज द कॉमन रूल। द एक्चुअल पैरामीटर मीन्स फंक्शन कॉल मस्ट बी द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल्स दैट आर लोकल टू द कॉलिंग फंक्शन, उनका जो एड्रेस पॉइंटर यूज किया गया है वो लोकल होना चाहिए, वो ग्लोबल नहीं होना चाहिए, उसी में डिक्लेयर होना चाहिए वो। द फॉर्मल आर्गुमेंट्स इन द फंक्शन हेडर मस्ट बी प्रीफिक्स बाय द इनडायरेक्शन ऑपरेटर, यानी स्टार जो ऑपरेटर है उससे वो पहले से ही प्रीफिक्स रहने चाहिए, इनबिल्ट रहना चाहिए। इन द प्रोटोटाइप मीन्स फंक्शन डिक्लेरेशन द आर्गुमेंट मस्ट बी प्रीफिक्स बाय द सिंबल स्टार, यानी आपके फंक्शन डेफिनेशन में भी और फंक्शन का जो बॉडी है उसमें भी आपको प्रीफिक्स सिंबल यूज करना है स्टार। To access the value of an actual arguments in the called function, we must use the corresponding formal arguments prefix with the indirection operator, ये indirection operator है star, तो वो होना ही चाहिए आपके इसमें, अगर वो नहीं रहता है in that case it will create the or it will generate the error, correct. That is what a multiple return types are there, that was the last category. Now like a nesting of a for loop, nesting of a if else statement, nesting of a if statement, we can also does the nesting of a function। ये मैंने पहले आपको एक इंटीमेशन दिया था कि आप फंक्शन को भी नेस्टिंग कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन, दैट वी कैन बिल्ड द सच काइंड ऑफ प्रोग्राम। हियर ही इज द एग्जांपल दैट फ्लोट रेशो निकालना है और डिफरेंस भी निकालना है, तो पैरामीटर पास कर दिया हमने और उसका रिटर्न टाइप भी डिफाइन कर दिया, फंक्शन टाइप भी डिफाइन कर दिया। इंटीजर a कॉमा बी कॉमा सी, तीन नंबर्स हमने रीड कर दिए, और प्रिंटफ फंक्शन में हमने रेशो फंक्शन को कॉल किया है। प्रिंटफ इज अ लाइब्रेरी फंक्शन, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, फंडामेंटल फंक्शन, एंड रेशो इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन।
अब ये रेशो फंक्शन को हमने किस में कॉल किया, प्रिंटफ फंक्शन में, और ये रेशो फंक्शन में हम किसको कॉल करने वाले हैं, डिफरेंस फंक्शन को कॉल करने वाले, वो आपको यहाँ पे दिखेगा फ्लोट रेशो। ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ अ रेशो फंक्शन, इंटीजर x कॉमा इंटीजर y कॉमा इंटीजर z, इफ, उसके अंदर हमने लिखा है इफ डिफरेंस फंक्शन दैट इज y कॉमा z, अगेन यहाँ से कर्सर इन्वोक करेगा इंटीजर फंक्शन को, वो नीचे रिटर्न या फिर एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली जाएगा इंटीजर डिफरेंस फंक्शन के ऊपर, जहाँ पे और दो पैरामीटर पास किए गए हैं, इंटीजर p and integer q. Inside that difference function, if the p not equal to q, return 1 else return 0, ये आउटपुट आएगा। देन रिटर्न फंक्शन जो होगा, रिटर्न पार्ट जो होगा रेशो फंक्शन के अंदर का, वो एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो हियर वी हैव रेशो फंक्शन inside the printf function, difference function inside the ratio function, that is what exactly the nesting, यानी एक बड़ा बॉक्स है प्रिंटफ फंक्शन का, उसके अंदर हमने रेशियो फंक्शन यूज किया है, छोटा बॉक्स। रेशियो फंक्शन के अंदर हमने और एक छोटा बॉक्स यूज किया है डिफरेंस फंक्शन। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द नेस्टिंग ऑफ अ फंक्शन, करेक्ट। सो दैट मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ सी, ठीक है। देन this part will be ended over here. Recursion part is not in our syllabus, but we just gone through that particular part, so we can make a change. We call the function in turn calls another function is a process of chaining, and this is nothing but the recursion is a special case of this process. अब recursion यानी क्या, जैसे कोई किसी को आदत रहती है एक ही चीज बार बार बताने की, ठीक है, जैसे हम फैकल्टी है, हमको भी आदत होती है कि हम बार बार बताते हैं आपको कि पढ़ाई करो, प्रोग्रामिंग करो, प्रैक्टिस करो। सो दिस इज व्हाट अ रिकर्सिव स्टेटमेंट, और मे बी सम ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आई अटर इन द लेक्चर, कि ओके बोलना, या फिर हैव यू अंडरस्टूड, इज इट स्क्रीन विजिबल, इज माय वॉइस इज एम आई ऑडिबल, ये जो चीज़ें हैं ये हम बार बार बोलते हैं, अब ये प्रैक्टिस हो जाती है उसकी, और वो चीज़ें अपने आप निकलती है। सिमिलरली few functions are there which are recursively utilized, or there is a chain, and for that this concept is there which is not in the part of syllabus, but we should know it. There is a one part which is a calling a particular function repeatedly or making a chain of a function, and that thing is known as a recursion, which is a special case of the function process, correct. Then we'll see the passing arrays to the function, ठीक है। जैसे हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखते हैं कि फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं, कॉलिंग अ फंक्शन, दैट वाज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। देन फंक्शन कॉल, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड कैटेगरीज ऑफ फंक्शन, यही हमारा एक टॉपिक था, बट उसमें कुछ चीज़ें एडिशनल भी हमने देखी हैं। सो पासिंग एरेज टू द फंक्शन, ये वन डायमेंशनल एरे के रिलेटेड है, टू डायमेंशनल एरे के रिलेटेड भी हम चीज़ें कर सकते हैं, दैट वी कैन डज with the help of a function, but right now we will only stick to the our syllabus part, correct. So we will moving towards the pointer concept, ठीक है, which we will deal or which we will discuss in the next lecture. But before that we will treat the, or we will discuss what exactly the pointer concept does. pointer का concept क्या होता है और उसका utilization क्या होता है, वो हम देखेंगे in a few minutes. So some of the programs are also there, some of the test cases or brief cases are also on the this particular topic, that is what a function. कुछ objective questions भी हैं, distinguish between the actual function, formal argument and actual argument, and operator and star operator, global and local variable, automatic and static variable, scope and visibility of a variable, ऐसे बहुत से है।
जैसे यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखेगा प्रोटोटाइप, इसमें से वैलिड और इनवैलिड कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। सो दैट आई विल प्रोवाइड यू। नाउ we will have the pointer, which is the last but one part of our 6th unit, pointers, ठीक है। so pointer is what exactly, introduction देख लेंगे हम pointer का। a pointer is a derived data type in a C. It is built from one of the fundamental data types available in C. Pointer contains a memory address as their values, since these memory addresses are the location of the computer memory where the program instructions and data are stored. Pointer can be used to access and manipulate data stored into the memory. जैसे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस अगर पता है तो हम क्या करते हैं, हम उसका डायरेक्शंस बताते हैं कि राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, स्ट्रेट जाना है, या फिर ये पर्टिकुलर लोकेशन से ये डायरेक्शंस में जाना है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, वी आर पॉइंटिंग टू द एक्चुअल एड्रेस। Here the C program also does with the derived data type, that is a pointer. If you know the address, then you can directly fetch the program instructions and data where it is stored. Where it is stored? It is stored into the memory, and if you know the address, we can reach to that particular part with the help of a pointer. Correct? So pointers are undoubtedly one of the most distinct and एक्साइटिंग फीचर ऑफ अ सी लैंग्वेज। इसमें कोई दोहराया नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ये एक बहुत ही अच्छा और एक यूनिक फीचर है पॉइंटर इन अ सी लैंग्वेज। इट हैज़ एडेड अ पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सी लैंग्वेज, ऑल्दो दे अपीयर अ लिटिल कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द बिगिनर। अब जैसे अगर हम पुणे साइड जाते हैं, पुणे साइड में अगर आप किसी को एड्रेस पूछते हो तो वो एड्रेस बताते टाइम आपको कुछ अलग ही टर्मिनोलॉजी बताएगा। इट जस्ट लाइक इफ यू सॉ द पुणे मुंबई पुणे मुंबई मूवी, सॉरी मुंबई पुणे मुंबई, यस एग्जैक्टली, या फिर पुणे मुंबई पुणे, आई एम कंफ्यूज अबाउट दैट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी। एक्चुअली इट इज मुंबई पुणे मुंबई, 2 times Mumbai was there, correct? So in that we see the address they told to the someone else like Swapnil Joshi, and I don't remember the name of that actress. They see they tell the address वरच्या अंगाला खालच्या अंगाला अँड सरळ जावा चौकातून काय ते काहीतरी सांगतात आपल्या इथे। आपण इन आवर रिजन वी कॅन डायरेक्टली से दॅट गो टू द राईट अँड देन लेफ्ट, देन देर इज अ स्क्वेअर, उजव्या हातावर जायचं डाव्या हातावर जायचं। एक खालच्या अंगाला आणि वरच्या अंगाला हा जो कन्सेप्ट आहे इट इज क्वाइट कन्फ्युजिंग. सो सिमिलरली इफ वी आर डीलिंग विथ लाइक दिस पॉइंटिंग टू द एड्रेस इट इज कन्फ्यूजिंग, बट डायरेक्टली इफ यू आर स्टेटेड विथ एन एग्जाम्पल, अगर हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं पॉइंटर का कंसेप्ट, देन इट इज क्वाइट ईजी, राइट? सो इट इज वन ऑफ द पावरफुल टूल and handy to use once you know the concept. So pointers are used frequently in a C language as they offer a number of benefits to the programmer. Some of the benefits that we will see, and then we will stop today's discussion. Pointers are more efficient in handling arrays and data tables. अब array क्या है ये मैं आपको quickly recall करके देता हूँ कि array is nothing but the similar data type elements that are stored in a consecutive memory location. अब यहाँ पे मेमोरी जब आती है तो पॉइंटर का कंसेप्ट डेफिनेटली आने ही वाला है कि मेरे पास अगर एक एरे है जिसमें thousands elements are stored, out of that if I want to find out the 888 array of 888 elements यानी 888 एलिमेंट मुझे अगर फाइंड आउट करना है उसमें क्या डेटा स्टोर है, तो मुझे array of 0, array of 1, array of 2, array of 3, array of 4 up to so on array of 8, 8, 7 तक जाना पड़ेगा। इतने सारे एलिमेंट्स सर्च करने पड़ेंगे तब कहीं जाके मुझे मिलेगा array of 8, 8
8 ट्रिपल 8 वाला एलिमेंट. Instead of that, if I use pointer concept, then I can directly jump from the existing position. जहाँ पे भी मेरा पॉइंटर होगा, कर्सर होगा, जैसे एरे ऑफ 0 पे अगर होगा तो डायरेक्टली जंप करेगा एरे ऑफ 888 पे, ट्रिपल 8 पे, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, विदाउट एनी सर्चिंग एनीथिंग. That is what a best benefit given by the pointer in case of handling the array. डेटा टेबल्स में भी वैसे होगा. आपका मैट्रिक्स जो है दैट इज नथिंग बट द वन टेबल, स्क्वायर टेबल. उसमें से कौन सा एलिमेंट आपको एक्सेस करना है. सो फॉर दैट वी हैव टू गो फ्रॉम रो एंड कॉलम वाइज. पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो, फिर फिफ्थ रो. इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू वांट टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट लाइक 3x3 मैट्रिक्स इज देयर, ए ऑफ 3 3, डायरेक्टली अगर एक्सेस करना है आपको तो आप एक्सेस कर सकते हो. That can be made possible with the help of a pointer concept only. Now, next benefit is pointer can be used. यहाँ पे pointer क्या है, हम use कर सकते हैं. Pointer can be used to return multiple values from a function via function argument. Pointer can be used to return multiple values. अब ये जो इसके पहले हमने मल्टीपल वैल्यूज का कंसेप्ट देखा था, either if you are using the if else statement, nested if else or something this kind of a statement if you are using, then we can get the return values, multiple return values that we can get. But with the help of a pointer we can also get multiple return values from a function via function arguments. आप पैरामीटर्स अगर 4 पास कर रहे हो तो 4 आपको रिटर्न वैल्यूज मिल सकती है, 4 रिटर्न वैल्यूज दैट वी कैन गेट with the help of pointer. Then the third one, last but one, pointers permit references to the functions and thereby facilitating passing of a function as arguments to the other function. अब ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम इसको एलैबोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. पॉइंटर परमिट्स रेफरेंसेस. जैसे मेरे घर के बाजू में अगर कोई रेफरेंसिंग लैंडमार्क होगा तो मैं बताऊंगा आपको मेरे घर पे अगर बुलाना है मुझे. पैंडेमिक में तो कोई आएगा नहीं, पैंडेमिक खत्म होने के बाद अगर मुझे आपको बुलाना है मेरे घर पे तो मैं बताऊंगा कि दिस वन इज द वन रेफरेंस. मेरे घर के पास ये है, ये किराना शॉप है, या फिर ये मिल्क डेयरी है, या फिर ये स्क्वायर है, या फिर जो भी है. दैट इज व्हाट अ रेफरेंस टू द फंक्शन and thereby facilitating passing of a function as an argument. यानी आपको मेरा घर का जो एड्रेस है वो इजीली मिल सके इसलिए मैं आपको रेफरेंसिंग बताऊंगा. कॉलोनी अगर मैं बताता हूँ तो मे बी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, बट अगर रेफरेंसिंग बताता हूँ कॉलोनी के साथ then you will actually then you will get exact address without asking to anyone. My home address will be decoded by you without asking anyone. तो ये कंसेप्ट जो है थर्ड, इट विल परमिट द रेफरेंसेस टू द फंक्शन एंड देयर बाय फैसिलिटेटिंग द पैरामीटर्स ऑफ अ फंक्शन एज अ आर्गुमेंट्स टू द अदर फंक्शन. यानी अदर फंक्शंस को भी वो पैरामीटर एक्सेस करने के लिए रेफरेंसिंग देता है. दैट इज व्हाट अ यूज ऑफ अ पॉइंटर. देन द लास्ट यूज ऑफ अ पॉइंटर, actually there are several uses but we will see the fourth one. The use of a pointer array to the character string results in saving of a data storage space in a memory. जो मैंने अभी बताया है आपको कि स्टोरेज मेमोरी में आपको हेल्प मिलेगी, मेमोरी मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प मिलेगी. Then few advantages are there also. Pointer allows C to support a dynamic memory management. कहाँ पे डेटा स्टोर करना है, जहाँ पे जगह है. जनरली हम हमारे बुक्स जो अरेंज करते हैं या फिर हमारा सेल्फ जो अरेंज करते हैं तो जहाँ जहाँ पे जगह है वैसे प्रॉपरली सीक्वेंस के हिसाब से हम उसको अरेंज कर देते हैं. उसी प्रकार से पॉइंटर क्या करता है, जहाँ पे अनयूज्ड मेमोरी है वहाँ पे डेटा को स्टोर करता है. दैट इज व्हाट अ डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट. देन सिक्स्थ वन इज पॉइंटर प्रोवाइड एन इफिशिएंट टूल for manipulating the dynamic data structures such as structures, linked list, queues and stacks and tree. ये तो हमने तीसरी बार देख रहे हैं हम लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक एंड ट्री हम तीसरी बार देख रहे हैं हमारे कंटेंट में, 6 यूनिट के कंटेंट में, कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स है
इनको efficiently यूज करने के लिए भी पॉइंटर ये यूज किया जाता है. Then last two advantages are there and then we will stop. Pointers reduces the length and complexity of the program. अब ये लेंथ ऐसे कि अगर मुझे 500 नंबर का अगर डेटा एक्सेस करना है एरे में का, तो मैं कंटिन्यूसली अगर उसको वन बाय वन एक्सेस करते जाऊंगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी. इंस्टेड ऑफ दैट पॉइंटर डज, आपकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां से वो जंप करता है 500 की जो पोजीशन है एरे की वहां पे डायरेक्टली, एंड दस पॉइंटर विल रिड्यूस द complexity and the length of the program and it will increase the efficiency of the program. टाइम भी रिड्यूस करता है, एग्जीक्यूशन टाइम भी वो काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है. दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल इन द सी लैंग्वेज. एंड द लास्ट वन, पॉइंटर इंक्रीजेज द एग्जीक्यूशन स्पीड एंड दस रिड्यूस द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम. ये अभी मैंने बताया कि इट इंक्रीजेज द एग्जीक्यूशन स्पीड and execution time ज़्यादा, then definitely it will require the more resources or more time to execute. That is not a good. ठीक है, तो पॉइंटर ये सारी चीज़ों को क्या करता है, रिड्यूस भी करता है और एग्जीक्यूशन स्पीड को इंक्रीज भी करता है. डेफिनेटली स्पीड ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इफ इंक्रीजेस, execution time will definitely decreases, which is inversely proportional. Correct. So this is all about the concept of a pointer. In next lecture we will discuss rest of the content. Thank you so much. Stay tuned, stay safe, stay home. Thank you.